ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਵਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਸਤਾ ਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾ ਖੜੀ ਝੂਠ ਤੇ, ਫਰੇਬ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਸੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਸ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਈਸਾ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਝੂਠ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਸੁਕਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਨੇ।
झूठ ते सिंहासन ते बैठा है झूठा औरंगजेब, सच चांदनी चौक दे शहीद हो रहे, जलाद गर्दन उड़ा रहे ने। झूठा सूबा सरहंद ओते सिंहासन ते बैठा है, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले सच दे मुजस्मे दीवारां दे चणे जा रहे। हुण मैं इन्ने ही टूक दोहरा के था कि मैं लड़ी जो छेड़ी हुई सी वो अर्ज करा, वक्ती तौर ते झूठ दी जित होंदी है, लेकिन कूड़ ने खुटे नानका ओढ़क सच रही। बाबर नूं ते अज कोई पुछण वाला नहीं, गुरु नानक दी जय जयकार सारी दुनिया च। जहांगीर दी कबर ते अज दीवा जलाण वाला भी कोई नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी जय जयकार, उन्हां दा संदेश उपदेश घर घर दे च पढ़िया जा रहा है, सारी दुनिया च गाया जा रहा है। एक दफा बंबे तो बाई रोड हजूर साहब मैं जा रहा सी, रस्ते च औरंगाबाद आउंदा है ते औरंगाबाद तो पहले आउंदा है खुलदाबाद। खुलदाबाद विच औरंगजेब दी कबर है, शायद आपको पता हो। ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती दा जिहड़ा पोतरा सी, ओदी कबर उत्थे है खुलदाबाद दे च। औरंगजेब ने वसीयत कीती सी मेरी कबर ओदी कबर दे कोल बनाना, क्योंकि वह फकीर सी, वली अल्लाह सी, गुनाह कमांदे सन भी चलो एक फकीर दी कबर दे कोल मेरी कबर होवे ते शायद मैं दोजक तो बच जावां। लेकिन उसने इस्लामी शरह की पाबंदी निभांदे होया हुक्म कीता सी कि टोपियां बना के कुरान शरीफ लिख के वो जो बाजार च बिकियां ने ते ओदे पैसे जो मैं इकट्ठे कीते ने मेरी कबर ते ओही खर्च करना, मेरी मैयत ते ओही खर्च करना, बाकी नहीं। शायद आपनों पता होवे खजाने दे पैसे दी रोटी नहीं खांदा सी, अपनी मेहनत दी रोटी खांदा सी। ये इतना वड्डा अपने आप को परहेजगार साबित करता सी। लिखत के मुताबिक जो वो पैसे इकट्ठे हुए वो 2 दिनार ते 8-10 दरम करके लिखे हुए है। ये 3-4 रुपए बनते हैं उस हिसाब के नाल, ज्यादा नहीं बनते। क्योंकि इधर अरब देशों जो सिक्का चलता उन्होंने रियाल या दिनार कहते हैं, उन्हें रुपए का नाम दिनार रख दिता सी। हुण इतने पैसों ते कच्ची कबर ही बन सकती सी, पक्की नहीं। तो अज भी उत्थे कच्ची कबर है। उहदे चारों पासे निजाम हैदराबाद ने हुण संगमरमर दी जाली बना दी है, कबर कच्ची है। मैं सारा दृश्य देखे है, क्योंकि ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती दा जिहड़ा पोतरा है ओदी जिहड़ी मज़ार है बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, रस्ते दे रोड दे उत्ते ही है, हाईवे थे। तो मेरा देखण नूं जी कीता बई इन्ने सुंदर मकबर है, गुंबद इतने आलीशान। बाद विच पता चलिया ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती दे पोतरे दी ये मज़ार है, और बाद विच ये भी पता चलिया नाल औरंगजेब दी कबर है कच्ची। ये सब कुछ देख के जद मैं चलन लग्या, औरंगजेब दी कबर ते जिहड़े 2 मजौर सन मैनू कहने लगे सरदार जी कुछ पैसे दे के जाओ, असी रात नूं दीवा जलाना आउंदा है कबर ते, तेल वास्ते पैसे चाहिए। जो जायरीन आउंदे ने, भाव यात्री आउंदे ने, असी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ। 30-35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 2 ਦਮੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜੌਰ ਆਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੇ ਚਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਕੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ इतना लफ्ज वक्ती तौर पे दोहरा दे हाँ। वक्ती तौर ते सता सिंघासन ते बैठती है, सत तत्ती तवी दे अंदर कच्चे हिरदे डोल जाते ने, पर अंजाम ऐसा होंदा है, आखिर विच सच सिंघासन ते आउंदा है, और जिहड़ी सता है वो ते मलिया मेट हो जाती है, कुछ भी नहीं। कूड़ ने कुटे नानका ओढ़क सच रही। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा उपदेश संदेश अज भी सारी दुनिया विच अलापिया जा रहा है, गाया जा रहा है, समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है। 10 तारीख नूं दास ने ऐ मजमून आरंभ कीता से, सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्व समाज। घर ते दर दोहां दा जिक्र कीता है। घर दे च आण वास्ते पहले दर ते आना पैंदा है, ते दर घर तो अलग नहीं आउंदा। जिस दर दे राही घर दे च प्रवेश मिले, वो दर घर दा हिस्सा होता है, अलग नहीं है। दो शब्द मैं दोहरावां खुलासाबाद दे, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। और जो प्रकाश दे रूप दे घर है, वही शब्द दे रूप दे दर है। जो शब्द दे रूप दे दर है, वही प्रकाश दे रूप दे घर है। प्रकाश दे रूप दे घर परमात्मा है, शब्द दो रूप दे दर गुरु है। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाही बेद। व्यापक है परमात्मा, व्यापक है गुरु। जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं, जो व्यापक नहीं वो गुरु भी नहीं। सदा अंग संगे अभंगंग बेबोते परमात्मा। गुरु मेरे संग सदा है नाले व्यापक। बड़े ध्यान नाल सुनना, जो व्यापक नहीं वो गुरु नहीं, जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं। प्रकाश दे रूप दे, सता दे रूप दे, शक्ति दे रूप विच परमात्मा व्यापक है। शब्द दे रूप दे परमात्मा व्यापक है। शब्द नूं दर क्यों कहा है? ये सारा संसार शब्द तो आया है। दरवाजा 2 काम करता है। तुसी दरवाजे दे राही अंदर दाखिल हो जाओ, ऐसे ही दरवाजे दे राही बाहर जाओगे। दरवाजे दे च बंदा बैठदा नहीं, सौंदा नहीं, दरवाजा आण जाण नहीं होंदा। शब्द दे राही संसार दी उत्पत्ति होंदी है, शब्द दे राही परले हो जाती है,
पंक्तियां सुनो। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है, शब्द तो परले हो जाती है, फिर शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है। हुण मैं दोहरावां, समा है नहीं सी, इस वास्ते अंदाजन आख्या जा सकता है करोड़ां अरबां साल तक, भावें साल नहीं सन, समा नहीं सी, इंज अंदाजन कहिए करोड़ां साल तक धुंध ही धुंध सी, धुंध ही अंधेरा ही अंधेरा सी, धुंध करके। एक दिन जोरदार धमाका होया, आवाज हुई, शब्द होया, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया। उस कवाओ तो, उस आवाज तो लखां जिंदगी दे दरिया चल पे, लखां ही जिंदगी दे दरिया। एक मिनट इसनों मैं दोहरावां, वो आवाज की सी, ਉਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਓੰਕਾਰ ਸੀ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੇ ਅਨਾਦ, ਇਹ ਅਨਾਦੀ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਅਖਰੀ ਦੇ ਚ, ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਰਮੇਠੇ ਤਾਏ ਨਾ ਮਾਨਾ। ओंकार इतना नहीं तुसी लिख दो ते मिटा दो। कबीर कहते हैं ओंकार आदि शब्द है और उस तो जगत आया है। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, तो शब्द संसार विच मौजूद है, साडे अंदर भी मौजूद है। सब कुछ आया जो शब्द तो है, व्यापक है शब्द। भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद, वो नाद घट घट दे च वज रहे, ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹਤ ਅਨਾਹਤ। ਆਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਟ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੋਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਪਵਨ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ। ਹੱਥ ਥਾਪ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤਬਲਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਟਕਰਾਏ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਟਕਰਾਏ, ਪਿੱਤਲ ਨਾਲ ਪਿੱਤਲ ਟਕਰਾਏ, ਪਿੱਤਲ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ। ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ। ਪਵਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਪਾਣੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਉਸ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ। ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਤਵਾ ਧਰਮੰਗ ਵਿਜਾਨਾਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਤਵਾ ਧਰਮੰਗ ਵਿਜਾਨਾਤੀ। ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਭੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੈਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਤਾਪ ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਮਨ ਸੁਣੇ। नहीं सुनता तो शब्द मन तक नहीं पहुंचेगा, ना फिर पाप धुलणगे ना दुख मिटणगे।
नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। ਉਹ ਜੋ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਧੇ ਚੂੰਕਿ 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ 60 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 2-4 ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 108 ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ 108। ਸ੍ਰੀ 108 ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਥਰਵਣ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ 3 ਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ 111। 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੇ 3 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 35 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 35 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਗਾ, ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੇ, ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੀ 108, ਸ੍ਰੀ 108। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ 108 ਸ੍ਰੀ 111 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। 60 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਓਮ ਹੈ, ਓਮ ਧੁਨਾਕਾਰ ਆਵਾਜ਼। ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਧੁਨਾਕਾਰ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਮੱਧਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਮ ਦੀ। ਕੁਝ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਇੰਜ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧੇ ਭਾਰਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਅਦਕੀ ਕੁੰਭ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਉਹ ਓੰਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਓੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਜੈਨ ਦੇ ਸਿਪਰਾ ਨਦੀ ਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਭ ਤੇ ਉਜੈਨ ਆਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਗਏ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ 4 ਪੁਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਣੇ ਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਜੋ ਇਤਨੀ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, 4 ਕਰੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਤੋਂ
कोई 100 गज की दूरी ते गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा ओंकार, जिथे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने वो बाणी उचारण की, जिस बाणी का नाम है दक्षिणी ओंकार। राम कली दक्षिणी ओंकार। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जनचित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्भय। महाराज कहते सारा पसारा ओंकार तो है। मता कोई कहे होर शब्द है, होर शब्द है, तो सतगुरु ने एक लाया, नहीं, एक ओंकार, एक ही शब्द है, दूजा नहीं है। ये इस वास्ते भी भारत देश ते ये दो शब्दां दी गल है, ओंकार ते ओम। इस्लाम दे बाने मुहम्मद साहब कहते हैं वो शब्द है कुन, तो मुसलमाना दे कुन मनते हैं। ईसाई जगत दे मनते ने वो शब्द लोगोस है। गर्ज के जिस जिस ढंग नाल पकड़ते चाहिए वो अनाहद नाहद है जो सुनाई देता है। गुरु नानक नूं कहंदे ने ओंकार, सुनाई देता है महावीर नूं कहंदे ने ओंकार है, सुनाई देता है भगत कबीर नूं कहंदे ने ओंकार, और सुनाई देता है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहंदे ने ओंकार है। उन्हां दे बोल ओंकार आद कथने अनाद। जाप साहब ओंकार अनादि कथनी है, पहला बोल है। ओंकार ब्रह्मंड दी पहली आवाज है, पहला शब्द है। ये शब्द इसे तो ही संसार दा आवना होया, कीता पसाओ एको कवा, एक कवाओ होया ओंकार। उस तो ही संसार दा पसारा होया। किस तरह होया? तिस्ते होए लख दरिया, उसे कवाओ तो जिंदगी दे लखां दरिया पैदा हो गए, बहु अनंत सूरज पैदा हो गए जो लखे नहीं जा सकते, गिने नहीं जा सकते। एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े बने, कई कोट ससियर सूर निकत्र कई करोड़ा। एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े होए। ये जमीन उसे सूरज का एक टुकड़ा, धुंध पानी बन गई, और वो टुकड़ा जो वास्तविक अग दा गोला से, अग दा गोला ही सी, सहजे सहजे ठंडा होने लग पिया। धुंध पानी बनी। इस अग दे गोले नू चारों पासे पानी ने घेरिया। सहजे सहजे ये अग दा गोला ठंडा होना शुरू होया। ये जिस रूप दे प्रगट होया इनू कहंदे ने पाहन। पाहन पानी तो प्रगट होया। साचे ते पवना भया पवने थे जल होए। पवन शब्द साचे ते पवना भया पवने थे जल होए। जलते त्रिभुवन साजिया घट घट जोत समोए। पंज तत्तां दी पुतला है साडा, हर तत्त दी अपनी अपनी प्रकृति है। ये जिहड़ा बोलना है ना, ये पवन करके देही माटी बोले पवन। हुण किवें बोलदा है, लंबा चौड़ा प्रकरण, मैं इस पासे ना जावां क्योंकि समा अपनी चाल नाल चलदा पिया। इस वास्ते सतगुरु ने पवन नू गुरु कह दिता है ना, पंज तत्तां दे चों पवन नू गुरु कह दिता है। पवन गुरु क्यों? बोलना पवन करके। संबंध जुड़दे ने बोल चाल नाल, संबंध टुटदे ने बोल चाल। टुट गई प्रीत बुर बोल, दो बोल बोले मित्रता दुश्मनी च बदल गई। गंढ प्रीति मिठे बोल, दो मिठे बोल बोले ओपरा बंदा अपना हो गया, मित्र बन गया। संबंध जुड़दे ने बोल चाल नाल। एक सियाणा मेहमान इको ही दिन दे अंदाजा ला लैंदा है दो भरावां दे संबंध ठीक नहीं ने। क्यों? बोलदे ही नहीं, बोलदे ही नहीं। एक सियाणा मेहमान इको ही दिन दे अंदाजा ला लैंदा है पति पत्नी दे संबंध बिगड़े हुए ने। क्यों? बोलदे ही नहीं। ते जे बोलदे ने ते कुरख्त बोलदे, वो बोल बोलते हैं जिहदे नाल प्रीत टुटदी है, फौरन अंदाजा लग जाता है। संसार नाल संबंध जुड़दे ने बोल के,
ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਸ। ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬੋਲਦੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪਏਗਾ, ਦਿਖਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਏਗੀ, ਦਿਖਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜੈਸੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ, 9 ਭਾਗ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਜਪਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਪੂਰਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ में ਕੋਈ ਜਾਗਰਤ ਰਹੇ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਔ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼, ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖਾ। संतन की सुन साची साखी, गुरु अर्जन देव जी महाराज। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। जो अखा नाल वेख, जबान नाल कह देता है। ये बोल गुरु ग्रंथ साहब दे और एक कवि दी कविता, जमीन आसमान दा अंतर है। मैं जमीन आसमान दा अंतरा कह रहा, भावे कविता कितनी चंगी क्यों ना। ये कविता ओदे दिमाग चो निकली है, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਨਾ ਉੱਚਾ ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। कबीर कहते है मेरे कोल प्रूफ, मैं सबूत दे सकता, मैं वेख के कह रहा। की सबूत है? कबीर कहते मेरी अखां ही सबूत ने। नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। मेरी अखां च थानू रब दा रंग मिलेगा, परमात्मा दा रंग मिलेगा। अंदर क्रोध होवे, अखां दे क्रोध झलकदा। अंदर लोभ होवे, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਲੋਭ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਟਪਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੋਵਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਟਪਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਟਪਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, आंखें जुबान नहीं लेकिन बेजुबान नहीं। उस्ताद ज़ौक़ कहते ठीक है,
ਅੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੰਬਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। तो मैं अर्ज करा, जिवें हथ खो भी सकते ने, हथ दे भी सकते ने, अखां बहुत कुछ दे जांदियां ने, अखां बहुत कुछ खोंदियां ने। ये भी मैं अर्ज करा, बहुत कुछ खो लैंदियां। किसे दे धन नूं ते किसे दे रूप नूं लोभ वस होके देखना। अखां नूं संस्कृत दे विच कहंदे ने लोचन, ते तकड़ी नूं कहंदे ने लोचा। ये दोवें शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच आए ने, लोचन लोचा। ये लोचा किसे दे रूप ते टिक जाए, हटे ही ना, ये दृष्टि हटे ही ना, फिर उसे नूं कहंदे ने गुस्ताखी माफ लुच्चा। लोचन लोचा लुच्चा गाल है, ये ते लुच्चा है। इति अखां नाल अगले दी असमत लुटदा पिया, इति अखां दे नाल अगले दी इज्जत पे लुटदा है। ये ते लुच्चा है, गाल है। लेकिन लुच्चा दा मतलब इतना ही है, लोभ वस होके, वासना वस होके किसे दे रूप नूं वेखना या किसे दे धन नूं वेखना। गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, कईयां दे हथ चोर नहीं आउंदे, नजरां चोर आउंदियां ने। कईयां दे हाथ ते नहीं खोंदे, क्यों? डर है कानून दा, समाज दा। हथकड़ियां ने, जेलां ने, हत्थां नूं हथकड़ियां पै सकदियां ने। नजरां नूं कौन हथकड़ियां पाए? किसने पानी? कानून पा सकदा है, समाज पा सकदा है। यकीन जानो, हथ मनुख दे बिल्कुल साफ सुथरे ने, इतने मैले नहीं। अजो कि संसार दे मनुख दियां जितनियां नजरां मैलियां ने, इतने हथ ते कपड़े मैले नहीं ने। नजरां बहुत मैलियां, बहुत मैलियां। लोचन लोचा लुच्चा, इस संबंध ते मैं काफी कुछ लिखिया भी है नजरां दे उत्ते। खैर मैं अर्ज करा, कबीर कहंदे ने ये नजरां ही मेरे कोल प्रूफ ने, अखां ही मेरे कोल प्रूफ ने। मेरी अखां ने प्रभु नूं वेखे, जो मैं वेखे ते कह रहा। दोए दोए लोचन पेखा, हाँ हर बिन अवर न देखा। तो मैं अर्ज करा, ये अनुभवी पुरुष ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बोल, ये किसी कवि दे बोल नहीं ने, ये ब्रह्मवाक ने। की बोलिए परमात्मा नाल संबंध जुड़ जाए, ओ बोल बोलो जो आए ही परमात्मा तो ने। परमात्मा नाल जोड़नगे, परमात्मा दे बोल, अपने बोल नहीं जोड़ सकते। अपनियां कितनियां ही कवितावां हो जान, कुछ भी नहीं है। ये गुरबाणी जपोगे ते खेड बन जाएगी। जप मन मेरे गोविंद की वाणी, साधु जन राम रसन बखाने। बड़ा भारी भुलेखा है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जपना सिमरन है, बाणी पढ़नी नितनेम है, सिमरन नहीं। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। कौन कहता है बाणी जपनी, नाम जपना नहीं है। सिमरन का मतलब है याद करना। ते जे वाहिगुरु वाहिगुरु करदा पे अंदर याद नहीं चलती पई, तो वाहिगुरु वाहिगुरु की पिया करदा है? कुछ भी नहीं है, हवा च उड़ जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जपना अपने आप नूं जगाण वास्ते, परमात्मा नूं सुणाण वास्ते नहीं। जितना मन जागदा जाएगा बाणी दे जप नाल, वाहिगुरु दे जप नाल, उतना ही परमात्मा दा पता चलदा जाएगा, पता चलदा जाएगा। हुण मैं अर्ज करा, अनंत काल पहले, अरबां खरबां साल पहले, धुंध से अंधकार से एक धमाका होया, आवाज हुई। एक जवान होके स्वामी महावीर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी, भगत कबीर ते उपनिषदां दे 60 ऋषि कह रहे ने, ओ आवाज सी ओ अंकार, ओ अंकार। एक एक दा खुलासा हुण मैं ना करा, ये गल वखरी है। बाकी कहंदे ने ओम, क्योंकि ये भी मैं दोहरा दे।
और मैं इसका खंडन भी नहीं करांगा, क्योंकि उन्होंने ओम पकड़ते चाया है, उन्होंने पकड़ते चाया ओम, किसी दी पकड़ते चाया ओंकार। जैन धर्म भावें गिणती दी ते बहुत थोड़े ने, ये कहते ने भारत के 60 लाख तो ज्यादा नहीं ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं, इतने ही ने। इन्हां दा पैगंबर, इन्हां दा अवतार महावीर है, वो कहंदा है जगत बनया ओंकार दी धुन तो। कलगीधर पातशाह कहते हैं ओंकार आद कथनी अनाद। कबीर भी कहते हैं ओंकार आद में जाना लिखे रमेटे तय न माना। तो हुण मैं दोहरा दिया, मां बाप तो ये शरीर आया है, चूंकि शब्द तो संसार आया है, तो शरीर दे मां बाप दी अंश मौजूद है, संसार दे शब्द मौजूद है, और शब्द व्यापक है। घट घट वाजे नाद, घट घट दे वज रहा है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? दरअसल मन बोलता है, मन चुप करे ते सुनाई देवे। जिस दिन मन चुप करेगा सुनाई देगा। धर्म की सारी साधना मन नू चुप कराने वास्ते है। सनातन मत दे कुछ ऋषियां ने इस नू इंज अपनाया भी चलो जिन्ने चिर तक मन नहीं चुप करता, जबान नू पहले चुप कर दे, जबान नाल नहीं बोलते, शायद किसी दिन मन भी चुप कर जाए। इस नाल गुरु नानक सहमत नहीं होए। गुरु नानक कहते हैं चुप है चुप ना हो जे लाए रहा लवतार। जबान दे चुप करने नाल मन चुप नहीं करता। एक बंदा चुप बैठा है, मन दी दुनिया च बड़ा रोला मचिया है, बहुत शोर शराब, किधरे चुप ना समझ लेना किसी को, मन बोलता है। रात को सुपने दी दुनिया रच के भी बोलता, चुप ते उकी नहीं करता, उकी नहीं करता। धर्म की साधना है, मन चुप करे, अनाहद नाद सुनाई देगा। उस अनाहद नाद दे च हजारां तरह दा राग है, हजारां तरह दे साजां दी आवाज है। वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे, केते राग परीसों कईयन, केते गावण हारे। जद कोई उस अनाहद नाद नू सुन लेंदा है, वो संगीत नू भी जन्म दे सकता है, कविता नू भी जन्म दे सकता है। ओदी कविता अमृतमयी बाणी होवेगी, परमात्मा दे बोल होणगे, ओदे अपने नहीं होणगे, क्योंकि अनाहद नाद तो आ रही है। ओदा अपना मन चुप कर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हो आपो बोल न जानदा, ओ कहा सब हुक्म आओ जियो। मेरा मन ते चुप कर गया, कुछ कहंदा ही नहीं। फिर इतना तुसी आखे ए प्रभु बोलता है, जैसे में आवे कसम की बाणी। पहले दिन जब गुफा दे मोहम्मद साहब की समाधि लगी है, उन्होंने कंबड़ी छिड़ गई सी। घर आए, उन्होंने बेगम हजरत खदीजा ने 3-4 कंबल पा देते, लिटाया, भाई शायद ठंड लग गई है। बैठ गए। उन्होंने जबान तो कुरान दियां आयतां निकली। शायद आपको पता हो, मोहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़। 2 साल दे सन, मां गुजर गई। 6 साल दे सन, प्यो गुजर गया। पाले है चाचे ने, अबू तालिब ने, यतीम, अनपढ़ रह गए। दूसरा मैं ये अर्ज करा, खदीजा, मोहम्मद साहब खदीजा दे मुलाजम सन। ओदा समान लैके दमशक दे, बसरा दे, बगदाद दे जाके बेचते सन, करबला दे जाके बेचते सन। पाई पाई दा हिसाब दे देंदे सन। ईमानदार बड़े सन, शरीफ बड़े सन। मालकिन ते ए नौकर दा रिश्ता फिर पति पत्नी दे बदले। खदीजा 40 साल दी सी, मोहम्मद साहब 25 साल दे सन। ये रिश्ता होया है, निकाह होया है। खदीजा 40 साल दी सी, मोहम्मद साहब 25 साल दे सन। रोज गुफा दे जाके रात नो अभ्यास करते सन। अज उस गुफा तक, जो कहते ने 14 मील का रस्ता सी, सऊदी गवर्नमेंट ने टनल बना दी है। हुण 3 किलोमीटर का रह गए। सारे उस टनल दे चों लंघ के जाते हैं। पिछले साल उस टनल दे भगदड़ भी मच गई सी, सैकड़े बंदे मर गए सन, क्योंकि लखां दा इकट्ठ उथों लंघदा है। उस गुफा तक सारे जाते ने, उस गुफा नूं सजदा करते हैं। बे इत्थे पहली समाधि मोहम्मद साहब दी लगी सी। जैसे वापस आए ने घर, कंबड़ी छिड़ी हुई,
कंबल ते कंबल पाए। खदीजा ने फिर बैठ गए, पसीना भी आ रहा है और कंबड़ी भी छिड़ रही है। फिर जबान चों तरन्नुम दे ये आयतां निकलियां कुरान दियां। दंग रह गई खदीजा, कहन लगी हजरत ये बोल थोड़े नहीं ने, थोड़े नहीं ने, तुसीं ते अनपढ़ हो। क्योंकि वो जिहड़े बोल सन वो काफिया ते रदीफ बिल्कुल कावे शैली दे और तरन्नुम दे दंग रह गए। ये बोल थोड़े नहीं ने। मुहम्मद साहब कहते ने हाँ खदीजा तू ठीक पकड़े है। इस वास्ते इस्लामी जगत विच कहते ने पहली मुसलमान खदीजा हुई है। सिख जगत दे प्रिंसिपल गंगा सिंह जी कहते सन सिखी बेबे नानकी तो शुरू हुई है, सारियां दे भरोसे टुट गए सन, बेबे नानकी दा नहीं टुटिया, उतों शुरू हुई है। कुछ ते कहते ने अकीदत ते भागवत दा संदेश ये द्रौपदी तो शुरू होया, कुछ तो इत्थे तक कहते हैं। खैर मुख्तसर बहस करा, ये मसला किसी वक्त फिर रखांगे थोड़े सामने। पहली मुसलमान खदीजा नूं मनदे ने, ये बोल थोड़े नहीं ने। ते मुहम्मद साहब कहते तू ठीक पकड़े है, मैं ते चुप कर गया, मोहम्मद ते चुप कर गया, पता नहीं खुदा की बोली जा रहा है, मेरी समझ च भी नहीं, मेरी समझ च भी नहीं। मैं एक दिन रविंद्र नाथ टैगोर की जीवन कथा पढ़ रहा सी। उन्हां दा शांति निकेतन मैं देखने वास्ते गया सी आसनसोल तो। भावें उत्थे मैं ब्लैक बोर्ड ते लिखिया शब्द देखिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी दा, प्रभु जू तो के लाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। मैं उत्थे कह बैठा, मैं कह ये शब्द ते 10वें पातशाह दा है जिहड़ा ब्लैक बोर्ड ते लिखिया है, इस तो तुसीं की सिखांदे हो? कहते ने काव्य शैली नूं गुरु गोबिंद सिंह ने जन्म दिता है, इस शब्द दे राही असीं ये विद्यार्थियों नूं सिखांदे आ। मैं कह इहदे च की है, मैनूं दसो जरा, मैनूं भी पकड़ च नहीं है मेरी, मैनूं दसो। कहने कि गुरु नानक देव जी जिस अखर नूं पहले वरतदे ने उस सारी पंक्ति विच वो अखर पहले ही रहिंदा है। जिवें पहली पंक्ति ते अस्थाई है, प्रभु जू तोखे लाज हमारी, हुण नन्ने नूं लैंदे ने, नीलकंठ, नीलकंठ एक शब्द है, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी, एको शब्द नन्ना चलता है। फिर पप्पा चलेगा, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी। फिर मम्मा चलेगा, माधव महाजोत, महाजोत एक कोई शब्द है, माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। मैनू कहने लगे असी ये काव्य शैली इस तो सीखते हैं। मैं कहा धानो तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे शब्द नूं इस तरह पकड़िया ते है, साडी ते कख समझ च नहीं आया। साडे विच कई दसम ग्रंथ की निंदा करन ते तुल पए, समझ कख नहीं आया, कुछ भी पता नहीं। कहने उहदे त्रिया चरित्र है। एक मिनट जरा खामोशी नाल सुनना। त्रिया चित्र दे काम दियां बारीकियां नूं, उतार चढ़ाव नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्णन किया है। क्यों किया है? ऋषि वात्सायन ने पूरा एक ग्रंथ लिखिया, उन्होंने कामसूत्र कहते हैं। लिखिया उसने सारा ग्रंथ राम ते नहीं लिखिया, प्रभु दे नाम ते नहीं लिखिया, काम ते लिखिया। सारा हिंदू समाज उसनों ऋषि कहता है, ऋषि वात्सायन। लिखिया उसने काम ते उन्हें बड़ी प्रबल दलील देती है, हंकार ते बोलिया जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। लोभ ते बोलिया भी जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। क्रोध ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। सिर्फ काम ते बोलना ते लिखना ये अश्लील हो गया, जिहड़ा सारी दुनिया नूं भ्रष्ट कर देंदा है। स्त्री नूं स्त्री नहीं रहन देंदा, गनका बना देंदा है, पुरुष नूं पुरुष नहीं रहन देंदा, बलात्कारी बना देंदा है। इस दे उत्ते बोलना ते लिखना अश्लील किस तरह होया? ऋषि वात्सायन दी इस दलील दे समय उस समय दा समाज चुप कर गया और वो ऋषि जान के पूजे गए, वो ऋषि जान के सत्कार गए। समाप्ति करा मैं। साडे विच जड़ा खड़ा खड़ा हो जाता है, नहीं जी है गुरु गोबिंद सिंह की रचना नहीं, रचना नहीं, रचना नहीं। मैं अर्ज करा गुरु गोबिंद सिंह की रचना तो चंगे चंगे सियाणे प्रेरणा लेंदे पे, कुछ सीखते पे, कुछ सीखण की कोशिश करो।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ। ठीक है, पुराना इतिहास सतगुरां ने लिखा है, इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज नहीं किया। 26 अवतारां दी कथा है और सतगुरु साफ लिखते पे ने, दसम कथा भागवत के भाखा करी बनाए, अवर बासना नाए प्रभ धरन जुद के चाहे, मैं ये सिर्फ टीका कीता है, मेरे अपने विचार नहीं ने। गुरु गोबिंद सिंह, मैं भाषा की थी तो गल खत्म हो गई। इल्जाम ते गुरु गोबिंद सिंह ते उंज नहीं आउंदा, पर कीता की जाए, अकल नूं ताले ला दो ते गुरु गोबिंद सिंह दी हर दिन नूं खंडन करी जाओ। दुआदार बोली जाओ जिन्हां नूं कख नहीं पता, सारी जिंदगी किसी होर पासे रोलदे ने। बुढ़ेपे जो है कौम नूं भ्रष्ट करने वास्ते गलत बोलन शुरू कर देंदे ने ते लिखना शुरू कर देंदे ने, जिहदे नाल आम समाज गलत फहमी च पै जांदा। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, शांति निकेतन दे उस शब्द तो कविता बनाने की शैली, नवी शैली, कहते जी इस जन्म गुरु गोबिंद सिंह ने दिता। असी सीखते हैं, असी सीखण की जो है कोशिश पे करते हैं, असी जानन की जो है कोशिश पे करते हैं। खैर लमकावा ना, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ना शब्द ओंकार, जैसे ओंकार दी धुन होई अनंत सूरज प्रगट होए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े और ओ धुंध पानी बन गई। सहजे सहजे ये अग दा गोला ठंडा होया, इहदा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होके प्रगट होया, वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया, आकार रूप दे पहला सी पत्थर। और सारी दुनिया च जितना पत्थर पूजिया जाता इतना परमात्मा नहीं पूजिया जाता। पता है क्यों? जैन पत्थर पूजते हैं, बौद्ध पत्थर पूजते हैं, सनातन पत्थर पूजता है, ईसाई पत्थर पूजते हैं, भावें मुसलमान आखन असी पत्थर दे पुजारी नहीं। संगे असवत जो थे पिया खाना खुदा दे जद्दा दे, कहते ने इब्राहिम तो आया, सीधा जन्नत तो आया, इब्राहिम नूं प्राप्त होया, सीधा खुदा तो आया ये पत्थर। हुण इन्हां कोल कोई पूछे खुदा तो बिना भी किसी होर पासे भी कोई चीज आउंदी है? सब कुछ खुदा तो है, पत्थर भी खुदा तो है। जद ईसाई कहते ने ये हजरत ईसा खुदा दा इकलौता बेटा है, तो बाकी शैतान दी औलाद ने जो खुदा दा बेटा है, उन्होंने इंज कहना चाहिए हजरत ईसा खुदा दा लायक बेटा है, शरीफ बेटा है, नेक बेटा है, कोई हर्ज नहीं इसनूं मनण दे। नेक पुत्र है, चंगा पुत्र है, नहीं जी इकलौता पुत्र है, बाकी किथों आए ने? फिर सारे उसे तो आए, सब उसे तो आए। कहने का ढंग ईसाइयां नूं जो है नहीं आया, गुस्ताखी जो है माफ। जितना पत्थर पूजिया जा रहा है, क्यों? आकार रूप दे परमात्मा जब प्रगट होया है संसार दे पहले पत्थर दे रूप। हुण पत्थर ते परमात्मा दा सुभाव एक ही है। परमात्मा नूं भुख प्यास नहीं लगती, पत्थर नूं भी नहीं लगती। परमात्मा नूं दुख सुख नहीं व्यापदा, पत्थर नूं भी नहीं व्यापदा। परमात्मा नूं हजारां गालां कटो, क्रोधी नहीं आउंदा। ते सारा दिन सजदा करी जाओ, उपमा करी जाओ, कोई फुल नहीं जाता। जे सब मिल के आखण पाए, वड्डा न होवे घाट न जाए। सारा दिन पत्थर देखो मत्था रगड़ो, वो कोई फुल नहीं जाता। ते सारा दिन उस गालां कटो, वो कोई ढेरी ढा नहीं बैठता। पत्थर का स्वभाव परमात्मा वास्ते परमात्मा वर्गा है। फर्क सिर्फ इतना है, पत्थर टोटली सुता हुआ है, परमात्मा पूरा जागे है, पूर्ण तौर पर चेतन है। हुण पत्थर जिस दिन पूरा जाग जाएगा, ये परमात्मा हो जाएगा। सहजे सहजे प्रकृति दे भी अर्थ किधरे नेचर न समझ लेना, कुदरत आम कुदरत करते हैं। संस्कृत का शब्द है प्रकृत, प्रकृति। कृत तो पहले परमात्मा, इथे प्रकृति दे अर्थ परमात्मा बनता है, नेचर नहीं बनता, कुदरत नहीं बनता। कुदरत ते कृत है, कादर दी कृत है, पर प्राकृत कृत तो पहले वो ते परमात्मा है, वो ते करता है। प्रकृति उसका नियम। सहजे सहजे पत्थर नो मिट्टी बना, जिस शक्ल विच प्रगट किया बनस्पति, ये दूजा पड़ाव सी। पत्थर ही बनस्पति बने। बनस्पति नूं थोड़ी जिहा प्यास लगती है,
ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਗੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ। ਹੁਣ ਨਿਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਾਗਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਰਸਤੇ ਚ ਹੀ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 118 ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, 29 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਸਵੈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਗਊ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ, ਤਮਿਲ